Welcome to the doubt solving video of exercise 6D, lines and angles. Let's start. First doubt is question number 7. If each angle of a triangle is less than the sum of other two, show that the triangle is acute angled. Very interesting question. Each angle of a triangle is less than the sum of other two. Okay, so let's suppose this is question number 7. Let's suppose that let the three angles of a triangle ABC be angle ABC comma angle BAC comma angle ACB. So these are the three angles of our triangle, and they have given that each angle of a triangle is less than the sum of other two, and we have to prove that the triangle is acute. Acute angle triangle means each angle is less than 90 degree. Okay, so they have given that angle ABC is less than angle BAC plus angle ACB, right? Similarly, angle BAC is less than angle ABC plus angle ACB. Similarly, angle ACB is less than angle ABC plus angle BAC. Okay, so this is given, what is given? That measure of each angle of a triangle is less than the sum of other two angles. Measure of each angle of a triangle is less than the sum of other two angles. Okay, now can you think of a relation between BAC plus ACB and ABC? See, we know that angle ABC plus angle BAC plus angle ACB is equal to 180 degree. Why? Angle sum property, angle sum property. So we can say that angle BAC plus angle ACB is equal to 180 degree minus angle ABC, right? अगर मैंने ABC को ये साइड शिफ्ट कर दिया, so BAC plus ACB will give you 180 minus angle ABC. Okay, so we can use this relationship and we can substitute the value of this BAC plus ACB in equation number 1. In equation number 1. Okay, so angle ABC is less than, angle ABC is less than 180 degree minus angle ABC. तो तुम सोचोगे कहाँ से आया? जस्ट लुक एट दिस फर्स्ट इनइक्वेशन. इनइक्वेशन इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बीच में इनइक्वालिटी की साइन है. इनइक्वालिटी मतलब स्मॉलर देन या ग्रेटर देन की साइन को इनइक्वालिटी की साइन बोलता है.
So we come to know that angle ABC is smaller than angle BAC plus ACB. It is given. And we also know that angle BAC plus ACB is 180 degree minus angle ABC. So यहाँ पे angle BAC plus ACB की जगह पे मैंने 180 minus angle ABC लिख दिया. And therefore angle ABC plus angle ABC, ये माइनस ABC उस साइड चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, एंड इट विल गेट एडेड विथ एंगल ABC is smaller than 180 degree. So 2 times angle ABC is smaller than 180 degree. 2 times angle ABC is smaller than 180 degree. So angle ABC is smaller than angle ABC is smaller than 180 degree by 2. So angle, therefore angle ABC is smaller than 90 degree, and therefore angle ABC is an acute angle. एंगल ए बी सी क्या है? एक्यूट एंगल है. अब देखो एंगल ए बी सी को मैंने एक्यूट प्रूव किया, ठीक है. एंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल, ये मैंने प्रूव किया. सिमिलरली आई कुड प्रूव दैट एंगल बी ए सी इज ऑल्सो एक्यूट, एंगल ए सी बी इज ऑल्सो एक्यूट. तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट दिस स्टेटमेंट. सिमिलरली it can be proved that angle BAC and angle ACB are also acute angles. Hence, triangle ABC is an acute angled triangle. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये. Acute angled triangle. So very nice question. Beautiful question. ठीक है. So this is how you prove the seventh question. It was a proper proof with statement and everything. So अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है लेकिन मेथड अगर मैच नहीं कर रही है, प्लीज रीडू इट अकॉर्डिंग टू माय मेथड. Calculate the value of x in each of the following figures. Hey, this is very simple. तो ये तो मैं यहीं पे कर दूंगा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू राइट स्टेटमेंट, आई एम गोइंग टू लीव दैट फॉर यू. 10th का सेकेंड वाला किसी ने मुझे डाउट पूछा है. So if this is 60, angle EAF is 60, it's given. So angle BAC is also 60. Why? Vertically opposite angles. Also 60 plus x is equal to 115. Why? Why 60 plus x is 115? Exterior angle property. पहले तो angle EAF is equal to angle BAC is equal to 60 degree, vertically opposite angles. उसके बाद 60 plus x is 115. Exterior angle property क्या होती है? Exterior angle property, exterior angle property says that in a triangle the measure of exterior angle, which is made by producing any side of a triangle outside the triangle, is equal to the sum of two opposite interior angles. So 60 और x का sum 115 होगा. So therefore x is equal to 115 minus 60, which is 55 degree. That's it. बस इतना ही था इसका प्रूफ. इजी था. चलो आगे बढ़ते हैं. Next is the doubt in question number 10th, part 3. Somebody asked me this doubt. Interesting question. Also easy, but you should know how to solve this. इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन में तुम्हें लिखना है कंस्ट्रक्शन. प्रोड्यूस का मतलब होता है एक्सटेंड.
produce AD to meet BC at E. AD को आगे प्रोड्यूस करो, ठीक है, आगे इसको प्रोड्यूस करो टू मीट BC एट E. BC को E पे मीट करने के लिए AD को आगे प्रोड्यूस करो, ठीक है. नाउ एंगल ABE प्लस एंगल BAE is equal to एंगल AEC. ABE प्लस BAE is equal to AEC. ABE क्या है? 45 डिग्री. BAE क्या है? 35 डिग्री. और is equal to कितना होता है? एंगल AEC. So this will be 80 डिग्री which is equal to एंगल AEC. So ये जो तुम्हारा AEC एक्सटीरियर एंगल है, एक्चुअली इधर लिखना चाहिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो ये एंगल AEC जो तुम्हें दिख रहा है दैट इज 80 डिग्री. अब हमें क्या ढूंढना है? एक्स ढूंढना है. वेरी इजी. एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू, एंगल ADC मतलब ये एक्स, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग. एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल DEC प्लस एंगल DCE. एंगल ADC is x, angle DEC is 80 degree plus angle DCE is 30 degree, right? ADC x, DEC 80 and DC is 30. So therefore x is equal to 110 degree. तो x की वैल्यू मिल गई 110. और ये भी इसकी रीज़न यही होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का 2 बार यूज हुआ ये क्वेश्चन में, राइट. सो ये डाउट भी क्लियर हो चुका है. इजी, काफी इजी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फिगर AD डिवाइड्स एंगल BAC इन द रेशियो 1:3. एंगल BAC दिख रहा है तुम्हें? एंगल BAC यहां पे ये. So AD divides angle BAC in the ratio 1:3. In the ratio 1:3 मतलब ये 1 पार्ट है और ये 3 पार्ट है, ठीक है. 1 पार्ट और 3 पार्ट, तो इसको मैं 1x और इसको मैं 3x मान लूंगा. एंड AD इज इक्वल टू DB. देखो ये भी दिया हुआ है कि AD is equal to DB. Okay, determine the value of x. Very interesting question. Okay, let's solve this. Let से शुरू नहीं करते हैं, हम बोलेंगे कि गिवन. चलो ठीक है, प्रॉपर्ली लिखते हैं इसको. गिवन एंगल BAD is to angle DAC. BAD is to DAC is equal to 1:3. ठीक है, 1:3. Therefore, let angle BAD is equal to 1x या फिर x and angle DAC is equal to 3x, जैसे मैंने डायग्राम में लिखा है. Also AD is equal to DB. AD और DB इक्वल है, ये गिवन है information, and therefore we can say that angle DAB is equal to angle
DBA. Angles opposite to equal sides are equal. Equal sides के सामने वाले angles equal होते हैं. So DAB is equal to DBA. Therefore, angle DAB is equal to angle DBA is equal to x. मतलब ये भी एंगल कितना हो जाएगा x और ये भी x. ठीक है, अब तो बहुत इजी है, हमें x की वैल्यू ढूंढनी है. नाउ एंगल इस ये पार्ट को मैं E नाम देता हूं. ठीक है, एंगल EAC, एंगल EAC दिख रहा है तुम्हें कितना है 108. इट इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB. EAC कितना है 108. 108 डिग्री जो एंगल है दैट इज इक्वल टू एंगल ABC which is x plus angle ACB which is also x. Therefore 2x is equal to 108 and x is equal to 108 divided by 2 which is 54. X is equal to 54 degrees. ठीक है, x की वैल्यू मिल गई. करेक्ट है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द मेथड. एक बार देख लो अच्छे से और फिर सॉल्व कर लो बिना देखे. ठीक है, लेट्स गो अहेड. क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट आउट मुझे पूछा गया. इन द फिगर प्रूव दैट a plus b plus c plus d plus e plus f. एक मिनट, ये दोनों डाउट है 12 to 13. okay, in the figure prove that a plus b plus c plus d plus e plus f is 360 degree. मतलब ये जो वर्टेक्स वाले एंगल दिख रहा है ना तुमको, a plus b plus c plus d plus e plus f is equal to 360 डिग्री. अरे ये तो बहुत इजी है यार. ओके, इन ट्राइंगल DFB, देखो यहाँ पे 3 लेटर एंगल का नाम मैं जानबूझ के नहीं लिखूंगा क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें भी 3 लेटर के नाम नहीं दिए. सो इन ट्राइंगल DFB, कैन यू सी ट्राइंगल DFB? ट्राइंगल DFB, ये वाला ट्राइंगल. ठीक है, इस ट्राइंगल में एंगल D प्लस एंगल F प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी. और ये दूसरा ट्राइंगल है AEC. दिख रहा है AEC उल्टा ट्राइंगल. अब देखो, इन ट्राइंगल AEC एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी. ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2 और हम लोग लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे. सो विल गेट एंगल, देखो A पहले लिखता हूं मैं, प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 प्लस 180 डिग्री दैट इज 360 डिग्री. बहुत इजी, इट वाज वेरी सिंपल. कुछ लोग डायग्राम देख के डर जाते हैं, ये डर निकलना चाहिए. ये प्रॉब्लम डर है और प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम डर है.
13th क्वेश्चन देख लेते हैं. इन फिगर AL इज परपेंडिकुलर टू BC. ठीक है, AL BC से परपेंडिकुलर है, यहां दिख रहा है 90 डिग्री है. एंड AM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. AM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, वो ये वाला एंगल से इक्वल है. दिख नहीं रहा है लेकिन है, बोला है. आई विल अगेन शो दैट. यहां से यहां वाला जो एंगल है, इट इज इक्वल टू यहां से यहां वाला एंगल. ठीक है, अब तो सही है. एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल CAM. ओके, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल LAM. LAM हमें ढूंढना है, और दो एंगल हमें दिए हैं, एंगल ABC और एंगल ACB. ठीक है, हो जाएगा. वैसे कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है मुझे, हो जाएगा. I would like to make this figure a little bigger. And I would like to move this part a bit. अब क्लियर है. ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो. ये वाला जो एंगल है ना, एंगल BAM, वो एंगल CAM ये वाले एंगल से इक्वल है. ये गिवन है. ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो. इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री लगाऊंगा. एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB, पूरे ट्राइंगल के तीनों सम का सम, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल ABC कितना है? एंगल ABC है 65 डिग्री. एंगल BAC कितना है? एंगल BAC मुझे नहीं पता है. एंगल ACB कितना है? 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल BAC will be equal to 180 degree minus 95 degree. That is 180 minus 95 is 85 degree. 180 minus 95 is 85 डिग्री. ठीक है, तो एंगल BAC तो मिल गया मुझे. BAC मतलब ये पूरा एंगल यहां से यहां तक. ओके, और हमें क्या पता है? हमें पता है कि ऑल्सो एंगल AM is the bisector of AM is the bisector of angle AM is the bisector of angle BAC, है ना. Therefore angle BAM plus angle CAM is equal to angle BAC, and also we can say that angle BAM is equal to angle CAM is equal to half angle BAC. ये दोनों एंगल इक्वल है, BAM और CAM, और वो दोनों पूरे एंगल BAC के हाफ है. Therefore angle BAM is equal to half of BAC. What is BAC? BAC अभी हमने ढूंढा था 85 डिग्री. तो 85 का हाफ कितना होता है? 85 का हाफ होता है 42.5. 42.5 डिग्री. ये क्या है? ये अंदर वाला एंगल, ये जो मिला ना हमें, वो
अब हमें क्या ढूंढना है, देखो हमें कौन सा एंगल ढूंढना है, मैं तुम्हें क्लियरली बताता हूँ। हमें ढूंढना है LAM, मतलब हमें सिर्फ इतना सा एंगल ढूंढना है, ओनली दिस मच। बट वो ढूंढने के लिए ये सब इतनी झंझट करनी पड़ रही है, अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ सी इन ट्राइंगल ABM, कैन यू सी ट्राइंगल ABM? इसको हाईलाइट करूं ABM को, देखो ABM दिख रहा है, ABM ट्राइंगल। ये ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, हमारे पास एंगल बी का मेजर है, एंगल बी है हमारे पास, यस। और क्या है हमारे पास, ये पूरा एंगल है, यस BAM है, अभी ढूंढा 42.5 डिग्री। तो हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं ना, कौन सा एंगल, एंगल AMB निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से। चलो ढूंढते हैं। सो इन ट्राइंगल ABM, oops, in triangle ABM, angle ABM plus angle BAM plus angle AMB is equal to 180 degree, that is angle sum property। एंगल ABM कितना है, कितना एंगल ABM, एंगल ABM है 60 डिग्री, 60 डिग्री या 65 डिग्री, देखो चेक करो, ABM 65 डिग्री है, कितना है 65 डिग्री, 65 डिग्री। एंगल BAM कितना है 42.5 डिग्री, जो ऊपर वाला एंगल हमने ढूंढा था, प्लस एंगल AMB is equal to 180। therefore angle AMB is equal to 180 minus 65 plus 42.5, 60 plus 40 कितना होता है 100, 100 plus 7.5, 107.5। अब 180 माइनस 107.5 करना पड़ेगा, देखो 180 माइनस 110 अगर मैं करूं तो मुझे मिलेगा 70 डिग्री, 72.5 हो जाएगा, 72.5 डिग्री। ये AMB मिला, AMB एक बार विजुलाइज करेंगे, ये रहा AMB, ये है 72.5 डिग्री। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ये मैंने रेड वाला बताया था ना LAM, वो ढूंढना है। तो वी हैव टू टेक ट्राइंगल ALM एंड फाइंड इट, ALM। इन ट्राइंगल ALM, एंगल ALM प्लस एंगल AML प्लस एंगल LAM is equal to 180 degree, angle sum property। ALM 90 है, AML 72.5 है, ये 90 है, ये 72.5 है, और LAM मुझे ढूंढना है, मुझे नहीं पता। ठीक है, सो एंगल LAM would be 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 72.5, 90 प्लस 72.5 कितना होता है 162.5, 162.5 डिग्री। सो 180 माइनस 162.5 कितना होता है, देखो 180 माइनस 160 होता है 20, 20 माइनस 2.5, 20 माइनस 2.5 17.5 डिग्री। सो LAM की वैल्यू आ गई 17.5 डिग्री, एंड दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट।
ये वाला एंगल कितना हो गया 17.5 डिग्री। सही है, समझ में आया तुमको कैसे किया मैंने? नहीं समझ में आया फिर से देखो पूरा सोल्यूशन, दिस इज द होल सोल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू विथ स्टेप्स, विथ प्रॉपर स्टेटमेंट्स, विथ रीजंस, ठीक है, एवरीथिंग जैसे प्रॉपर होना चाहिए तुम्हारा सोल्यूशन वैसे लिखा है मैंने फॉर यू, सो दैट यू गाइज अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी इसकी टेस्ट आ रही है, मुझे नहीं चाहिए कि तुम लोग कोई भी गड़बड़ करो उसमें, ठीक है। वी हैव मोर 5 क्वेश्चंस टू गो इन डाउट्स, सो लेट्स स्टार्ट। चलो shall we check the answer once? 17.5 देखो ये मिला 13 का 17.5 सही है ना। बाकी आंसर आप लोग चेक कर लेना, कुछ भी ऐसा गलत या सही है या क्या है देख लेना। ओके 14 15 16 17 18 ये सब सबके कलेक्टिव डाउट्स है, ये किसी एक ने नहीं पूछे, ये सब ने पूछे हैं। किसी ने एक पूछा है, किसी ने दो पूछा है, किसी ने चार, किसी ने पाँच, बट सबके यही डाउट्स है। मतलब ये वीडियो अगर सब लोग देख लेते हैं पूरा तो उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, प्लस उन्होंने जो मिस्टेक की है अगर उनको लगता है सही किया है लेकिन मेरा आंसर देख के समझ में आता है कि नहीं किया है सही, तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी, प्रूव दैट एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी सी। देखो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है 14th वाला, आई वुड रेकमेंड दैट ये क्वेश्चन तुम अभी ना करो, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इन इक्वालिटी, और ये जो इन इक्वालिटी का टॉपिक है वी आर गोइंग टू डू आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी। इन इक्वालिटी आई रेकमेंड डोंट डू दिस राइट नाउ, ठीक है। 14th वाला तुम स्किप कर सकते हो, दिस इज inequality question, so don't do it right now. I'm going to teach this particular type of question in the topic of inequality after congruency. Yeah, 15th question, we can do 15th one. In triangle ABC, BD is perpendicular to AC. Okay, question number 15, let's draw a triangle. Do they have triangle? Yes, they do have triangle. Thank you so much. इनके पास सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है क्या? आइसोसेलेस या फिर इक्विलैटरल, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। हाँ तो ये कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी सॉरी बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है, एंड सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, सी ई is perpendicular to AB. Okay, if BD and CE intersect at O, अच्छा BD and CE they intersect at this point O, prove that angle BOC is 180 degree minus angle A. Prove that angle BOC is 180 minus A, मतलब BOC और एंगल A का रिलेशनशिप हमें ढूंढना है, ठीक है। हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। इसका एक तरीका मुझे जो अभी मतलब एग्जैक्टली देख के उसको समझ में आ रहा है, पहले तो गिवन टू प्रूव लिख देते हैं। गिवन डायग्राम बना दिया, अब गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी
is perpendicular to AC, CE is perpendicular to AB, okay. What else is given? BD and CE intersect at O. To prove angle BOC is 180 degree minus angle A. So we have to prove a relationship between angle BOC and angle A such that angle BOC is 180 degree minus angle A. कोई भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, सीधा प्रूफ लिख सकते हैं हम लोग. अब देखो, इन quadrilateral AEOD, कैन यू सी AEOD quadrilateral? इसको हाईलाइट करूं मैं? वेट, ये वाला quadrilateral AEOD. In this quadrilateral, angle A plus angle E plus angle O plus angle D is equal to 360 degree. What is this? Angle sum property of a quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, तुमने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा. ठीक है. सो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल डी भी 90 है इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 180. 90 प्लस 90 180, वो साइड शिफ्ट हो गया. So therefore angle A plus angle O is equal to 180 डिग्री. अब एंगल O क्या है? एंगल O मतलब ये वाला एंगल O की बात कर रहे हैं, बट एंगल O is equal to एंगल BOC, vertically opposite angles, right? Therefore एंगल BOC, एंगल O की जगह एंगल BOC लिखा, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए. एंगल ए को वो साइड शिफ्ट कर दिया. सो एंगल BOC इज 180 डिग्री माइनस एंगल ए, राइट? सो दिस इज, यू कैन से द प्रूफ. ये एक इजी तरीका है और यही एक तरीका है जो मुझे समझ में आया है जिससे ये इजीली प्रूव कर सकते हैं ये वाले प्रूफ को, ये वाले क्वेश्चन को. ठीक है, लेट्स मेक सम स्पेस. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 15th is done. 16, 17, 18. 18 तीन बचते हैं अभी. 16th, question number 16. If two parallel lines are cut by a transversal, prove that the bisectors of interior angles on the same side of transversal intersect each other at right angles. बहुत इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है. पहले तो दो पैरेलल लाइंस बनाते हैं. If two parallel lines are cut by a transversal, ये पैरेलल लाइन से इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है. एक मिनट, ये पैरेलल लाइंस, लेट मी राइट इट एज ए बी सी
डी पी क्यू, ठीक है. Lines AB and CD are two parallel lines which are cut by a transversal L at points P and Q, and we have to prove that the bisectors of interior angles on the same side of transversal. अब interior angles ये है BPQ और DQP, इसके bisectors मतलब ये interior angle का bisector यहाँ जाएगा और ये interior angle का bisector यहाँ जाएगा, ठीक है. सो दीज आर द बाइसेक्टर्स, मतलब ये एंगल इससे इक्वल है और ये एंगल इससे इक्वल है. ये दोनों बाइसेक्टर्स है. सपोज ये पॉइंट है O, ये दोनों बाइसेक्टर्स O पे मीट कर रहे हैं और हमें ये प्रूव करना है कि द बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब एंगल POQ इज 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है. लेट्स राइट गिवन टू प्रूव एंड एवरीथिंग. क्वेश्चन इज इजी. Let me write in short form. AB is parallel to CD. Transversal L cuts the two lines at P and Q respectively. Transversal L cuts the two lines at P and Q respectively. OP and OQ bisect angle BPQ and angle DQP respectively, right? ये जो एंगल BPQ है और DQP, उसको OP और OQ बाइसेक्ट कर रहा है. OP and OQ bisect angle BPQ and angle DQP respectively. ये भी हमें गिवन है, ये सब कुछ गिवन है, ठीक है. तो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट OP and OQ intersect at right angle, that is angle POQ is equal to 90 डिग्री. ये हमें प्रूव करना है. एंगल POQ is equal to 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है. प्रूफ, इसका प्रूफ बहुत क्यूट है, छोटा सा, अच्छा है, बहुत मजेदार है. एंगल BPQ प्लस एंगल DQP, एंगल BPQ प्लस एंगल DQP इज इक्वल टू 180 डिग्री. BPQ प्लस DQP इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है. को इंटीरियर एंगल्स formed between two parallel lines and on the same side of the transversals are always supplementary. Co-interior angles are supplementary. तो ये BPQ, ये पूरा एंगल, और ये एंगल DQP, इनका सम 180 डिग्री होगा. therefore half of angle BPQ plus half of angle DQP is equal to half of 180 डिग्री. मैंने क्या किया? थ्रू आउट हाफ से मल्टीप्लाई कर दी. हाफ ऑफ एंगल BPQ कितना होता है? हाफ ऑफ एंगल BPQ
हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू होता है ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस हाफ ऑफ एंगल डी क्यू पी कितना होता है, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ पी क्यू प्लस ओ क्यू पी, मतलब ये जो अंदर वाला एंगल है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ओ पी क्यू कौन सा है, ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस ये दोनों का सम 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे एंगल का सम अगर 180 है तो इन दोनों एंगल्स के हाफ का सम 90 होगा, ठीक है। अब देखो, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी is equal to 180 degree, that is angle sum property, एंगल पी ओ क्यू प्लस ओ पी क्यू प्लस ओ क्यू पी, ओ पी क्यू प्लस ओ क्यू पी कितना होता है 90 is equal to 180 degree, so angle POQ is equal to 180 minus 90 which is 90 degree, right? So हमने ये जो OPQ प्लस OQP था उसकी वैल्यू जो 90 थी हमने सब्सटीट्यूट की, उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके 180 में से माइनस किया, सो वी गॉट एंगल POQ इज इक्वल टू 90, और वही हमें प्रूव करना था, POQ इज इक्वल टू 90। तो ये हियर यू कैन राइट हेंस प्रूव्ड। ये तुम्हारा पूरा प्रूफ है तुम्हारे सामने स्क्रीन पे। गिवन टू प्रूव डायग्राम विथ प्रूफ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट्स, रीजंस, एवरीथिंग, कुछ भी मिसिंग नहीं है, ठीक है। तो अब तो तुम्हारे जितने भी डाउट्स है ये तो क्लियर होने ही चाहिए। चलो और भी एक दो डाउट्स है, देख लेते हैं। ओके, 16th हो गया, अब 17th की बात करते हैं। क्या है 17th? क्वेश्चन नंबर 17, prove that the angle between the internal bisector of one base angle and external bisector of the other is equal to 1/2 of the vertical angle। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, ये मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ आफ्टर ड्रॉइंग द डायग्राम। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर। अच्छा, देखो ये एंगल ए, ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसको एक्सटेंड किया है यहाँ पे डी, ये एक बेस एंगल है, इसका बाइसेक्टर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज लेट्स से ई, एंड ये जो दूसरा एक्सटर्नल बाइसेक्टर है वो ये एक्सटीरियर एंगल का रहेगा, ठीक है। सो दिस विल गो ओवर हियर टू एफ सी एफ, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। और ये जो दोनों बाइसेक्टर्स हैं इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, इनके बीच में ये वाला एंगल बन रहा है, इसको मैं पी नाम देता हूँ, एंगल बी पी सी। सो ये क्या प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं पता है? Prove that the angle between the internal bisector of one base angle and the external bisector of the other is equal to 1/2 of vertical angle। मतलब ये जो एंगल BPC है it is half angle BAC। to prove मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंगल BPC is equal to half angle BAC, ठीक है। अब ये हमने किया हुआ है, इफ यू स्टिल कैनॉट रिकलेक्ट आई कैन शो यू। हमने पिछले पार्ट में ये सॉल्व किया था,
Okay, let me show you. यस, इसी पार्ट में किया था हमने. This one, QTR is half of QPR. Do you remember that? तो ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल और फिगर तुम्हें दे दिया है. बट द क्वेश्चन विच वी आर सीइंग राइट नाउ, इसमें तुम्हें सेम क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म में दिया है और उसका डायग्राम मैंने तुम्हें बना के दिखाया. ठीक है. सो ये तुम्हें फिर से करना पड़ेगा प्रूफ. बट इफ यू नीड हेल्प, you can have a look at the solution which I have discussed over here. ठीक है. ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. आई थिंक ट्राइंगल्स का ही यही पार्ट का वीडियो था. एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसका 6th क्वेश्चन है. ठीक है. तो तुमने भी अपने नोटबुक में लिखा होगा. नहीं लिखा है तो प्लीज़ एक बार देख लो, वीडियो में देख लो, and then try to solve it all over again. But it is absolutely the same question as I just showed you. Diagram is also the same. ठीक है. चलो 18th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन डाउट देख लेते हैं क्या है. A triangle ABC is right angled at A. A, B, C. AM is drawn perpendicular to BC. AM is drawn perpendicular to BC. Prove that angle BAM is equal to angle ACB. Very nice question and very easy question also. BAM and ACB को इक्वल प्रूव करना है. ठीक है. आई विल शो यू. और इसका एप्लीकेशन तुम देखोगे नेक्स्ट ईयर. कुछ चैप्टर्स है ट्राइंगल का, एक चैप्टर, उसमें इसका एप्लीकेशन दिखेगा तुम्हें. इस साल भी कॉन्ग्रुएंसी में दिखेगा इसका एप्लीकेशन. ठीक है. सो गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में इन ट्राइंगल ABC angle A is equal to 90 degree. Also AM is perpendicular to BC. To prove angle ABM, नहीं, angle BAM, right? Angle BAM is equal to angle ACB. Angle BAM is equal to angle ACB. ये प्रूव करना है. ठीक है. प्रूफ. In triangle ABC, let angle ABC is equal to x degree. इसको हम लोग x मान लेते हैं. x. Therefore angle ABC plus angle ACB plus angle BAC is equal to 180 degree.
क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, ये पूरे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। एंगल ए बी सी कितना है? अभी लिया था हमने x। एंगल ए सी भी नहीं पता है। एंगल बी ए सी कितना है? 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस x, which is equal to 90 minus x. Angle ACB, this angle is 90 minus x degrees. Just a moment, I will just थोड़ा बड़ा फिगर की ज़रूरत है यहाँ पे, बहुत छोटा बन गया है। करेक्ट, अब ठीक है। So this angle is 90 minus x, this is x, okay? अब देखो, now in triangle BAM, BAM दिख रहा है तुम्हें ट्राइंगल? एंगल BAM प्लस एंगल ABM प्लस एंगल AMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BAM, so we don't know what is angle BAM, plus angle ABM, ABM is x, plus angle AMB which is 90, it is equal to 180. So angle BAM, 180 minus 90 is 90 minus x. Angle BAM is 90 minus x. BAM, this one. We just proved that BAM is 90 minus x, and therefore angle BAM is equal to angle ACB. See, ACB is also 90 minus x, BAM is also 90 minus x. और हमें प्रूव क्या करना था? BAM is equal to ACB. हो गया प्रूव, hence proved. इजी था ना? तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने पहले एक एंगल को तो मैंने x मान लिया, x मान के फिर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी पूरे ट्राइंगल पे लगाई, और मुझे जो थर्ड एंगल है वो 90 माइनस एक्स मिला, बिकॉज आई नो वन ऑफ द एंगल इज 90। फिर मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया BAM, और उसमें मैंने ये मुझे पता है ये 90 है, गिवन है, ठीक है, और ये x है, मैंने ही लिया है इसको, तो ये 90 माइनस एक्स मिला। सो BAM इज इक्वल टू एंगल ACB, 90 माइनस एक्स है दोनों। सो दैट इज प्रूव्ड। ओके, 18th भी हो गया। सो देयर इज नो मोर डाउट्स देन, ऑल द डाउट्स आई हैव डिस्कस्ड। आप लोग ये वीडियो देखो एंड लेट मी नो कि अभी क्या इश्यू है, क्योंकि लाइन्स एंड एंगल्स तो अब खत्म हो चुका है। डाउट सॉल्विंग के साथ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली ओवर एंड आई होप कि तुम्हारी इसकी टेस्ट आ रही है। शायद नेक्स्ट टेस्ट इसकी ही है, नहीं नेक्स्ट टेस्ट तुम्हारी फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर कंबाइंड है शायद, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। अभी हमको करना है नेक्स्ट, वी हैव टू स्टार्ट विथ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। सो आई विल बी very shortly making the videos and sharing with you. Till then you just see this video and final doubt clearing अपना कर लो, and then be ready for the test, practice and be ready. All right, see you later, bye bye.